All are to barriers to effective communication. म्यूट कीजिए अपना प्लीज. Can you see the screen? Barriers to effective communication and managing communication. What do you understand by the term barriers to effective communication? Obstacles which can hamper message, which can distort message. इसको barrier करते हैं. कोई भी चीज जो बाधा होती है, barrier is some kind of, it can be noise, anything which obstructs, उसको कहते हैं barrier. So barriers to effective communication and managing communication. How can you manage communication? What is the management of communication? Speaking in such a way, managing words in such a way so that you are understood 100%. If you do not know how to manage your communication, then you do not know how to manage your message. Do you think it requires some kind of intelligence to manage communication? How? Tell me. जो लैंग्वेज हम यूज करें प्रॉपर होना चाहिए. इंग्लिश पे जो भी जो सेंडर समझ रहा है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए. Perfectly बोल सकते. You cannot speak in the same way with everyone. A wise person knows how to manage his communication. Whether he is at his place, he will talk like a person at home differently. He will talk to somebody in the office in a formal way. When he will be with his friends, he will talk in an informal way. A wise person is one person who knows how to manage all these things. You cannot talk similarly with everybody. आप एक ही तरीके से हर किसी से बात नहीं कर सकते. कुछ लोग उतने वाइज नहीं होते हैं कि एक ही तरह से वो हर जगह बात करते हैं. जिस तरीके से वो घर में बात करते हैं उनकी हैबिट बन जाती है. Good communication also is a habit. Do you agree? कि उनकी हैबिट बन जाती है कि जैसे वो घर में बात करते हैं जिस तरीके से वो हर जगह वैसे ही बात करते हैं. अगर ये गुड हैबिट, अगर ये बैड हैबिट को रेक्टिफाई नहीं किया गया, then it will come in your system. आपके सिस्टम में आ जाएगा, फिर आपके कैरेक्टर में वो ढल जाएगा और फिर आप अपने हैबिट के क्या हो जाएंगे, स्लेव हो जाएंगे. क्या करें, आदत हो गई है ऐसी बोलने की. आई डिड नॉट मीन दिस. कई बार हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं एक्चुअली हम मीन नहीं करते, मेरी आदत ही ऐसे बोलने की है या इतनी जोर से बोलने की है. सुनते आप भी सुनते होंगे कि नहीं ऐसा मीन नहीं किया, ऐसे ही बोलता ही ऐसा. A wise person knows how to manage communication.
आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हुए who can very well say that I can manage my communication? वो जिस तरह से अपने वो ऑफिस में बात करते हैं, किस तरह से वो अपने क्लाइंट से बात करते हैं, सब कैटेगरीज अलग अलग बनती हुई है ना. इसी को बोलते हैं मैनेजिंग कम्युनिकेशन. Effective communication is a process of exchanging ideas, thoughts, knowledge, and information, such as that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. अब मैसेज करने का मतलब भी है, बात करने का मतलब भी है कि हम 100% सुने जाएं, समझे जाएं. मकसद क्या है कि हम जो बोल रहे हैं आप समझिए और हमारे बोले पर वो उसी के अनुसार आप काम कीजिए. The very purpose of communication is to be understood 100%. है कि नहीं? पर्पस क्या है कि आप 100% समझिए. कोई मैसेज लेके नहीं आता है कि आप 2 समझिए 4 मत समझिएगा. So it has to be understood 100%. In simple words, it is nothing but the presentation of views by the sender in a way best understood by the receiver. We can say that it generally involves sender, the person who initiates the process of communication by sending a message. It starts with the sender. Sender के पहले भी होता है ideation. You get an idea. एक ideation होता है. कोई बात करना चाहता है तो पहले आइडिया होता है. एक आइडिया आता है तो बात करोगे. पहले क्या होता है, आप कुछ सोचते हैं, मुझे कुछ बात करनी है, तो पहले बात आता है कि पहले चैनल आता है कि पहले सेंडर आता है? क्या आता है सबसे पहले आइडिएशन. फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि हमको किससे बात करना है, तब आता है रिसीवर. फिर आप सोचते हैं कि कैसे बात करना है, जाके बात करेंगे, ईमेल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, व्हाटएवर. तो सबसे पहले आपको वेरियस चैनल्स में चूज करना पड़ेगा ना. ये भी सिचुएशन से डिपेंड करता है. बात कितनी अहमियत है इस पर. अगर बहुत ही सीरियस है तो क्या करेंगे आप? कॉल करेंगे आप. जैसे आई रिमेम्बर अ स्टोरी. एक सर्वेंट था, बेवकूफ सर्वेंट था, वेरी स्टूपिड सर्वेंट. तो उसके मालिक ने कहा कुछ भी कहना होता है ना तो तुम हमको लिख के बताया करो. कुछ भी कहना है तो तुम डिस्टर्ब मत किया करो हमको, तुम हमको लिख करके बताया करो कि क्या करना. और अगर हम नहीं है तो तुम मेरे पास आकर के बताना कि क्या है. ठीक है, फोन मत किया करना हमको. दिस वॉज द इंस्ट्रक्शन. देखो क्या उनके घर में आग लग गई तो तू वो डिबेट क्या करना चाहिए, मुझे लिख के बताना चाहिए या मुझे जाके बताना चाहिए? तो जाके नहीं, जा ही के बताते हैं. बहुत इम्पोर्टेंट. तो ही डिबेटेड एंड देन ही थॉट दैट मुझे जाके बताना चाहिए. जब तक वो वहां पहुंच जाए तब तक तो स्वाहा. लेटर वाला तो सही ऑप्शन. लेटर लिखता तो कब वो ईमेल को कब पोस्ट अब दूसरा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. यहाँ भी इंटेलिजेंस की बात होती है. तो we choose, the person chooses the channel as per the situation. So it starts with the sender, the person who initiates the process of communication by sending a message. And then the receiver, the one to whom the message is to be delivered.
Just delivering a message is not enough. It must meet the purpose of the sender. Here are some characteristics of effective communication. अब क्या क्या है? Clear, correct, complete, precise, reliability, consideration of the recipient, sender's purpose. Reliability है, उसको क्लियर मैसेज में. अब क्लियर मैसेज का बैरियर क्या होता है? ये लेट अस टॉक अबाउट बैरियर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट बैरियर्स. तो क्लैरिटी ऑफ मैसेज में बैरियर कहाँ आता है? बहुत ज्यादा उसको खींचना नीचे. इजी टू क्लियर नहीं अगर है तो फिर बैरियर आ गया सामने. इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड. Yeah, easy to understand. Easy to understand नहीं. Understand completely. Correct message में क्या होता है? It should not have any incorrect information. It should be complete. आधा अधूरा होगा तो नहीं चलेगा क्या? मैसेज फ्लॉप हो जाएगा. मैसेज greatest barrier. Incomplete message is the greatest barrier. Precise message. If your message is too long, it becomes a barrier. How? Nobody has the time to read long messages. Unreliability is the greatest barrier. कि भरोसेमंद आप नहीं हैं. It is not reliable. So unreliability, greatest barrier. If you have no respect for the others, consideration ही नहीं है, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी लिख दिए, it becomes the greatest barrier. And sender's courtesy. जो sender है, polite नहीं है, courtesy नहीं है, courteous नहीं है. ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. कंप्लीट, प्रिसाइज, रिलायबिलिटी. तो ये आप जान रहे हैं ऑलरेडी. सेंडर्स कर्टसी का मतलब होता है द मैसेज so drafted must reflect the sender's courtesy, humbleness and respect towards the receiver. What is the meaning of humbleness? Vinamr. तो नाउ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अभी आपने जो 7 C's जो देखा, 7 C's में कहीं भी कुछ कमी हो जाता है तो दैट रिफ्लेक्ट्स बैरियर्स. Now we come to the barriers of to effective communication. What are some other barriers? Effective communication is in the workplace is not always straightforward, and barriers can easily get in the way. When you're working in the office, there might be some barriers. There might be some instructions which you have not understood. सब कुछ इतना straightforward नहीं होता है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ barriers होता ही रहता है. They cause messages to become distorted, subsequently leading to confusion. जब मैसेज स्ट्रेट नहीं रहता है, जब मैसेज समझा नहीं जाता है, जब मैसेज इनकम्प्लीट रहता है, तो the message can be confusing. It leads to confusion, misunderstanding, and even offense in some cases. Offense का मतलब क्या होता है? नाराजगी. People can be offended. People can be angry. अगर कोई इनकरेक्ट मैसेज चला गया है, या कर्टसी नहीं है, या पोलाइटनेस नहीं है, या इनकम्प्लीट मैसेज है, तो कंफ्यूजन तो होता ही है. लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आने लग जाता है, और इन द वर्स्ट केस पीपल कैन फील बैड अबाउट इट.
Yes, it causes great confusion. So there are many reasons why interpersonal communication may fail. What do you understand by interpersonal communication? नहीं, आप बताइए, what is interpersonal communication? No. So how you deal with individual ones? How we behave with others in a group. How well you know the people working with you. कितनी अच्छी तरह से आप अपने ग्रुप को जानते हैं. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. आप कितनी अच्छी तरह से अपने ग्रुप के मेंबर्स के कम्युनिकेशन को जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, कितने अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी भाषा को, उनकी भावनाओं को समझते हैं आप. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स नोइंग योर ग्रुप. अपने ग्रुप को जानना, अपने ग्रुप को मेंबर्स को समझना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना. A leader is known by his interpersonal communication. So leader अगर मैनेजर है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो he does not know anybody working in the group. एक लीडर को मालूम होना चाहिए, एक ग्रुप मेंबर को मालूम होना चाहिए कि ग्रुप मेंबर्स में क्या खास बात है, किसमें कितनी काबिलियत है. You must know each, if you are a member of like this group, PGDF first sem. How well do you know each other? आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा है आपके ग्रुप में? Not good. Then इतने छोटे से ग्रुप में आप समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को. तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, जहाँ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होगा. कोई जापान से होगा, कोई चाइना से होगा, कोई इंडिया से होगा. इंडिया में ही कोई अगर बैंगलोर से है, कोई चेन्नई से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई कानपुर से है, कोई बिहार से है. नॉट गुड बोलूंगी. How you communicate in your group? Interpersonal communication is how well you know your group, how polite you are, how courteous you are, how understanding you are. क्या आप मिलजुल के रहते हैं ग्रुप में या नहीं रहते? मतलब क्या होता है? एक एचआर की ड्यूटी होती है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सब एक दूसरे का हाल जाने. जैसे सीआर, अगर सीआर की बात करते, ठीक है. सीआर का काम क्या है? सीआर का काम ये है कि जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सबका एक रिपोर्ट बनाना. मान लीजिए कि कोई भी क्लास XYZ, मेरी क्लास कोई है, तो 4 आदमी को समझ में आ रहा है और 10 आदमी को समझ में नहीं आ रहा है. तो ये सीआर की ड्यूटी है कि समझना, समझाना और टीचर को रिपोर्ट करना कि किस ग्रुप से एग्जिट हो जाता है. हाँ, खुद ग्रुप बनाता है, खुद ग्रुप एग्जिट करता है. तो तुम्हारा इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक नहीं है, लेकिन पूरा डैमेज. नहीं, अभी ठीक हुआ है, कल ठीक किया गया है. कल ठीक किया गया है ना? तो तुम इतने छोटे से ग्रुप में नहीं कर पा रहे हो, तो तुम बड़े ग्रुप में तो खुद ही एग्जिट कर जाओगे. नहीं, अभी ठीक हो गया. अच्छा हो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का साम निकाल दिए जिक्र अभी, तो राज तुम्हारा कुल राजी रह जाता. नहीं, ठीक है. तो ये इंटरपर्सनल मतलब आपसी संबंध कैसा है? क्या एक दूसरे को आप जानते हैं अच्छी तरीके से? क्या उसके प्लस माइनस जानते हैं कि हाँ इसका ये ड्रॉबैक है, इसका फ्लॉज है? कितना क्लियर आप, कितना लोग आपको जानते हैं, ये भी मायने रखता है. हाउ वेल यू नो योर ग्रुप. तो किसी भी क्लास का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे ही होता है.
मान लीजिए तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन, अब तुम्हारे बारे में बात नहीं करें, मान लीजिए एक लीडर है, उसको कुछ कम्युनिकेशन फॉरवर्ड करना है, तो जीएम उसको बोलता है कि चलो उसको ये प्रोजेक्ट है और सबको मालूम होना चाहिए। अब वो अपने ही काम में इतना बिजी है, जीएम तो बता दिए और वो समझ भी गया, अब वो कुछ काम में बिजी हो गया और सोचा कि चलो जीएम तो बाकी लोगों को भी बता ही दिए होंगे, तो थोड़ी, और कम्युनिकेशन पास ऑन नहीं होता है। इस बिकम्स अ बैरियर, हुआ कि नहीं? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। किसी बात से वो अगर भूल जाता है या उसको स्लिप कर जाता है, और फिर शाम को जब मालूम पड़ता है कि एकेडमिक कोई भी मीटिंग होनी थी, सेल्स मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिस्कस होना था इस प्रोजेक्ट को, और एजेंडा तो बना ही नहीं, इसलिए कि आगे बात बढ़ी नहीं और लोग अपने अपने घर भी चले गए। बाद में क्या हुआ? कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, नो कम्युनिकेशन। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि आगे बात नहीं बढ़ती है, किसी वजह से हो सकता है। कोई पर्सनल ग्रीवांसेस भी होता है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी को हर किसी से पटे, ठीक है? कोई उससे नहीं बात कर रहा है तो कोई उससे नहीं बात कर रहा है, कोई उससे नहीं बात कर रहा है। तो ये ऑफिस में नहीं होना चाहिए, ये ऑफिस कल्चर नहीं है, ये वर्क कल्चर नहीं है, कि ये घर कल्चर है, ठीक है? घर में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन घर पर अक्सर होता है कि हम मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, तो उसने मुझे, वो चाचा है, मुझे डांट दिया था, तो आजीवन बात नहीं करेंगे, उसके खड़ी नहीं जाएंगे। भाई बहन में लड़ाई होता है अगर, तो जितना तुमको हम दिए थे तुम सब वापस सबको दे दो। मम्मी ने डांट दिया है तो 2-3 साल मम्मी से बात नहीं करेंगे। ये तो कभी ये कभी 10 मिनट कैसे बात बंद हो? नहीं, ऐसी लड़की थी, जब मैंने पूछा कि tell me something about your family, तो पहला लाइन उसने कहा था कि I don't talk to my mother, I don't talk to my mother। मैंने बात आगे चढ़ी नहीं, कुछ हुआ होगा, नो कम्युनिकेशन। पापा से बात ना हो समझ आता है, मम्मी पापा तो खड़े ही रहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कि अपने ग्रुप में अपने लोगों के साथ तालमेल कैसा है आपका, हाउ वेल यू नो द पीपल इन योर ग्रुप। So there are many reasons why interpersonal communication may fail, है ना? बहुत reasons है। In many communications, the message may not be received exactly the way the sender intended, and hence it is important that the communication seeks feedback to check their meaning, message is clearly understood. तो कोई मैसेज अगर किसी को देते हैं कि इसको फॉरवर्ड करना है, हम तुमको मैसेज दिए, जैसे मैंने सीआर को बोला कि सुनो नेक्स्ट वीक हम मार्क्यू लेंगे, ठीक है? कब लेंगे? मैं फीडबैक ले लूंगी। कब लेंगे हम मार्क्यू? नेक्स्ट वीक। क्या लेंगे हम? मार्क्यू लेंगे। क्या कहना है? नेक्स्ट वीक हम मार्क्यू लेंगे। अंडरस्टूड? नाउ टेल मी व्हाट विल यू, व्हाट मैसेज विल यू गिव? तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं कर लेंगे, ओके मैम आई विल टेल द क्लास दैट नेक्स्ट वीक यू विल टेक दी मार्क्यू। ये होता है फीडबैक लेना, कि मैंने क्या कहा है बोलने के लिए, एक बार बताओ, समझे हो कि नहीं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So there exist many barriers to communication and they may occur at any stage. किसी भी स्टेज पर बैरियर हो सकता है। हो सकता है कि जब हम बोल रहे हैं, किसी का फोन आ जाता है, कट हो जाता है, तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया, पर्टिकुलर चीज नहीं सुन पाए,
बगल का लड़का कुछ या लड़की कुछ पूछी, तुमसे कुछ बोली, तुम सुन नहीं पाई। तो किसी भी स्टेज पे बैरियर आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटे के क्लास में 100% यू लिसन एंड अंडरस्टैंड। यू लिसन तो आप सुनते तो हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट 1 घंटे के क्लास में हो सकता है देयर माइट बी 20 words which you have not understood, 20 points which you have not understood, है कि नहीं? So communication barrier can occur at any stage of the message being delivered. So these can occur at any stage in the communication process. Barriers may lead to your message becoming distorted, and you therefore risk wasting both time and or money by causing confusion and misunderstanding. Effective communication involves overcoming these barriers and conveying a clear, concise message. Some common barriers include, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। इसमें नहीं है, अगर होगा भी आगे तो आई डोंट नो। कितने बैरियर्स आप जानते हैं? फिर अपने बारे में सोचिए ना, क्या क्या बैरियर्स आपके पर्सनल क्या क्या बैरियर्स? जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में, then I can define it by saying that आपका मेंटल मेकअप कैसा है वो करता है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड। अगर मन परेशान आपका है तो कुछ भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है आपको नहीं समझ। कोई भी मूवी आपको कोई दोस्त ले जा रही है, चलो अच्छा खाना भी खिला, आइसक्रीम ला के दे रही है, तो आपको फिर वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? आइसक्रीम भी सेम चीज है, सेम टेस्ट है, टॉफी चॉकलेट भी सेम चीज है, लेकिन वो मन आपका मन अगर परेशान है तो कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर। आपका मूड अच्छा लगता है तो जो कुछ मिला तो बहुत हंस हंस के खुश होकर के खाते हैं। क्या बोल रही हूँ? मुझे तो बुरी चीजें भी अच्छी लगने लगती। हाँ, जैसे कि बगल में लड़की बैठी गाना गा रही मेरे कान में, अच्छी लगती। नॉट मीन दैट। ये लड़की तो जैसे किसी से बात नहीं करती हो, झगड़ा किसी से हो गया है, खुश होती तो उसको भी गले लगा देती हूँ। क्यों? उस समय कोई नजर नहीं आता है, बस अपना मन दिखता है। उतनी खुशी में तो आपकी बगल वाली चाची बोलेगी इसको क्या हो गया आज, हमको देख के बहुत हंस रहा था, खुश हो रहा था, नमस्ते आंटी बोला है, एग्जाम खत्म हो गया। हाँ तो वो सोचेगी क्या बात, जो मुंह घुमा के चला जाता था आज वो हाय आंटी कैसी है। When you are happy, you only see yourself. Similarly, when you are sad, बस आपको अपना दिख रहा है। ये I am sad, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये मदर मिल से चलो बेटा खाना खा लो, नहीं छोड़ दो, अच्छा मन नहीं ठीक लग रहा है, आज भूख नहीं है। भूख ऐसे नहीं, सुबह से कुछ खाए भी नहीं, भूख है ही नहीं आज। मम्मी लोग बोल देती है बाहर खा के आई होगी, बोल देती है, बच्ची साइकोलॉजी समझती नहीं, नहीं समझती, खाना पड़ता है वो लोग। दूसरा एक साइकोलॉजी में आता है डर। डर की वजह से बहुत बच्चे कुछ पूछते नहीं है या संकोच है। अब डर को डर मत समझिए, फियर मीन्स फियर के लोग समझेंगे कितना बेवकूफ, सबको समझ में आ रहा है, हम ही को बेवकूफ नहीं समझ में आ रहा है, तो लोग क्या कहेंगे कि पूरा क्लास तो नहीं पूछ रहा, हम क्यों पूछे, मतलब कि
इतने सारे में एक अभी है जो जिसकी IQ थोड़ी कम है, तो नहीं पूछेगा। ऐसा हुआ फील क्या? कुछ समझ में नहीं आया, पूछे नहीं हो तुम लोग? कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट नेचर के जो कि ज्यादा खुलते नहीं है लोगों को। हाँ, इंट्रोवर्ट नेचर के वही होते हैं कि लोग क्या समझेंगे कि तो कुछ नहीं आता है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको कोई सोचना नहीं पड़ता। सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये बैरियर, बहुत बड़ा बैरियर है। सब कुछ ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पढ़ के भी आए हैं और अच्छा प्रदर्शन भी देंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं अंदर से आता है। ग्रेटेस्ट बैरियर। दूसरा शाइनेस, बहुत शर्माती हैं लड़कियां। लड़के भी नहीं बोलते हैं, शर्मीले टाइप के लड़के होते हैं, नहीं कुछ बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे। तो ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हेजिटेशन, संकोच होता है। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, तो शर्माता का में हेजिटेट हो जाता है, हेजिटेट मतलब नहीं बोल पाता है। हाँ, ये भी एक तो हमें हेजिटेशन तो ज्यादातर लैक ऑफ वर्ड्स के कारण, मतलब हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है। हाँ, तो हेजिटेशन हुआ ना, एक ब्लॉकेज हुआ ना, ये मेंटल ब्लॉक हुआ ना। कि गलत या सही कॉन्फिडेंस है तो यू कैन स्पीक। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें जाने पहचाने चीज भी है जो हम लोग जान रहे हैं। मेंटल स्टेट कभी कभी आ जाती है और अपनी बात को हम नहीं कह पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं अपनी सोच से, या कभी कभी हम किसी को लेके इतने प्रेजुडिस हो जाते हैं कि वो कुछ भी बोलेगा तो वो सही नहीं है। हाँ, और कोई कुछ भी बोलेगा तो हाँ, उसको आंख बंद करके भी बोला तो सही बोल रहा है। और किसी के साथ बिकॉज यू ट्रस्ट देम, और किसी के साथ वो कुछ भी बोलेगा तो आप उसको ट्रस्ट करेंगे ही नहीं, कि वो जो कुछ भी कहेंगे आप सुनेंगे तो जरूर, लेकिन यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ सुन रहे, यहाँ से निकाल देंगे, यू आर इग्नोरिंग, बिकॉज आपको प्री डिफाइंड कुछ चलता रहता है, बाय डिफॉल्ट ऐसा बन गया है। आपका परसेप्शन कुछ किसी खास के लिए ऐसा है, क्योंकि कोई बात आपको लग रही है, आपको लगेगा कि नहीं, कहीं कुछ ना कुछ बैरियर बन जाता है आपका परसेप्शन। ये देखते हैं 7 बैरियर्स में क्या क्या है। द यूज ऑफ जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स, ओवर कॉम्प्लिकेटेड और अनफेमिलियर टर्म्स। बता तो ना, जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स, जैसे जो डॉक्टर्स लिखते हैं, कुछ कोड वर्ड में लिखते हैं, वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो नहीं समझेंगे आप। हाँ, वो बता देंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। टेक्निकल टर्म जो आप सीखते हैं तो आप ही जानते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़ेंगे वो नहीं जानते। ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स जो कि डॉक्टर्स करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं, IT के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वही जानते हैं। हाँ, टेक्निकल टर्म्स, अनफेमिलियर टर्म्स, जार्गन। मैंने इमोशनल तो पहले ही कर दिया था, साइकोलॉजिकल में आता है इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज। मतलब टैबू मतलब कि ये वर्जित है, ये हम नहीं करते।
Something which is prohibited. मेरे घर में ऐसा नहीं होता, हम नहीं करेंगे। हाँ, ट्यूसडे को हम नहीं खाएंगे। जैसे एक लड़की थी जिसको मैंने कहा कि चलो गणेश वंदना करते हैं, स्टार्टिंग प्रोग्राम का तुमसे ही होगा। वो नहीं से नहीं गई, वो नहीं गई। बोली कि मैम, पहले मैंने समझा नहीं कि क्यों बार बार क्यों नहीं बोल रही। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो हम शुरू में समझे नहीं। वो शुरू में हम नहीं समझे, हमसे जब हमने डाटा में चलो करो ना, मेरे साथ करो, हम कर रहे हैं मेरे साथ करो। मैम उसने जो व्हाइट हिजाब लगा के रखा, हाँ हाँ, वो नहीं से नहीं, वो कर रहे, बोले कि मैम समझिए मैम, हम नहीं कर पाए। आई टोल्ड हर इट इज ओनली अ सॉन्ग। अच्छा अच्छा गाती है वो, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा बैरियर क्या है मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा उसका बैरियर है कि वो सीखना चाहती नहीं, समझती कि मुझे बात है। ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्टेज परफॉर्मेंस तो सही नहीं हुआ उसका। मैम आप भी बहुत अच्छा गाए। आप अकेले वो तालीम जाने के लिए थोड़ी था वेलकम सर। एनीवेज, तो किसी किसी का इमोशनल इतना रहता है कि हमको सीखना क्या है, मुझे तो बहुत आता है, मैं नहीं करती। तो उसके साथ टैबू क्या था कि बोली कि नहीं मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं कर सकती, वो टैबू है। बाद में हाँ ठीक है, हम समझ गए। दूसरा बैरियर उसके साथ क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट, सीखना नहीं चाहते हैं, मुझे सब आता है। ये बहुत बड़ा बाधा है जो कि परफॉर्मेंस खराब हुआ। हाँ चलो, तीसरा है, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ अटेंशन। क्लास में ध्यान नहीं दोगे, टीचर्स की बात का ध्यान नहीं दोगे, जो मैसेज दिया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे। अभी ध्यान नहीं दे रही। लैक ऑफ अटेंशन बहुत बड़ा बैरियर। Why don't you write down the points? फिर पूछ लेंगे एग्जाम में, समझ में नहीं आएगा। ध्यान नहीं देना, कोई मैसेज बताया जा रहा है, कोई मैसेज दी जा रही है, कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो आप इधर उधर सोच रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ? सबने समझा, आपने नहीं समझा, क्यों? लैक ऑफ अटेंशन, सिंपली। और लैक ऑफ अटेंशन ही नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि और कुछ सोच रहे हैं आप, ध्यान भटक रहा कहीं और आपका। और इररिलेवेंस टू द रिसीवर, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। जैसे मैम ने कहा रिहर्सल करना है, तो मेरे लिए रिहर्सल जरूरी नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सब आता है। रिजल्ट क्या हुआ? फ्लॉप, डिजास्टर। वो भी उसी कैटेगरी का है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कैसे क्या होगा देखते चलिए, फोर्थ है डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। जैसे मैंने कहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तुम इसको बोल रहे हो आधी ग्लास पानी है, दूसरा कह रहा है आधा तो भरा हुआ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट परसेप्शन। तुमको ये चीज बहुत अच्छी लग सकती है, हमको कोई खास नहीं है, किसी को बहुत बेकार लग सकता है कुछ। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट परसेप्शंस कैन लीड टू बैरियर्स। असल में बहुत पूछा जाता है कि गिलास में पानी का खाली है या भरा, क्या उसका
क्या क्या नहीं, जैसे एक गिलास है उसमें उसको हाफ पानी डाल दिया उसमें गिलास में, पूछा जाता है कि बताओ गिलास कैसा। हाँ, ये साइकोलॉजी टेस्ट होता है कि हाँ अब तुम क्या जवाब दोगे। अगर ग्लास रखा जाता है तुम्हारे सामने तो आधा ग्लास अगर पानी है तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? पानी है उसमें, खाली है। आधा भरा हुआ, तुम्हारा पहला क्या रहेगा? आधा गिलास पानी है और क्या, आप आधा गिलास। तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? आपको बस ग्लास दिखाया जा रहा है और आपको एक सेंटेंस बोलना है, तो आप क्या बोलिएगा? आपका जवाब क्या है, आप बताइए ना। आधा गिलास पानी है। तुम्हारा ग्लास में पानी, ग्लास दिखाया जाए तो ग्लास ही होगा ना। पानी भी है उसमें आधा। साइकोलॉजी टेस्ट है। जितने लोगों ने कहा कि आधा तो खाली है, वो रिजेक्ट हो गए थे। पानी